فلم کا مرکزی خیال خلافت دوئم کے خاتمے کے بعد کے حالات ہیں کہ کس طرح جناب علی کو حق خلافت سے دور رکھنے کی سازش تیار کی گئی۔ اس فلم میں جناب امیر کی ان بے مثال اور لازوال خدمات کا ذکر ہے جو انہوں نے دوران حیات رسول ادا کی۔ یہ فلم تمام مشہور غزوات مثلا خیبر خندق سے لے کر مباہلہ اور غدیر کا احاطہ کرتی ہے جن میں مولا کائنات نے شرکت کی۔ یہ فلم ان چند اعلیٰ صفات کا بھی احاطہ کرتی ہے جو مولا علی نے خود اپنی زبانی شورا میں بیان کی۔ میں بھی بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ 2 دن ہو گئے روٹی کی شکل دیکھے ہوئے۔ مدینے سے سامان رسد جلد آ پہنچتا ہے۔ اللہ مالک۔ یا رافع، رسول خدا سے کہو کہ خیبر کا محاصرہ اب ختم کر دیں۔ کیا آپ بک رہے ہو عبداللہ؟ میں خیر کی بات کر رہا ہوں، سب کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ یا تو یہ بھوک ہمیں مار دے گی یا یہ یہودی کمبخت۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ابو صالح، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من سلوہ اتارا ہے۔ محمد کہاں ہے؟ محمد کدھر ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ اس کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس شخص کا تعلق خیبر سے ہے، اس کے ساتھ 50 بھیڑے بھی ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے پر نہیں دیا۔ خیبریوں نے ہمیں کھانا بھجوایا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تم دونوں جاؤ اور اس کو رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ احمد، مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ کیا آپ انبیاء یہود پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس طرح نہیں جس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی تمام زندگی یہود طریقے پہ گزاری ہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے گا۔ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ کیا وہ مجھے قبول کرے گا؟ دل میں جھانکو اور بتاؤ کیا دیکھتے ہو؟ نور دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مجھے اپنے ساتھ کر لیجئے یا محمد۔
الله أكبر الله أكبر لقد أسلم هذا الرجل لقد أصبح مسلما یا رسول اللہ، میں اپنا تمام ریوڑ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ جس طرح چاہیں اس کو تصرف کریں۔ یہ بھیڑیں واپس کر دو۔ یا رسول اللہ، ہم بھوک سے پریشان ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جاؤ اور بھیڑیں واپس کر دو۔ یہودیوں سے کہو کہ قلعے کا دروازہ کھولیں اور جانور واپس لے لیں۔ یا رسول اللہ، بھوک میں ہمیں ان جانوروں کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہودیوں کے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ، میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرا دل آپ کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ تم نے اپنی آخرت سنوار لی ہے۔ کیا مجھے مسلمان ہونے کی سند مل گئی؟ تم لوگ میرے ساتھ گواہ رہو۔ کیسے یہ شخص اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ شامل کرو، کیونکہ یہ کچھ پل کا مہمان ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے ایمان کی دولت مل گئی۔ اے خیبر والو، قلعے کا دروازہ کھول دو اور اپنے جانور واپس لے لو۔ مت گھبراؤ، مت ڈرو، ہم کو تم سے کوئی کلام نہیں۔ اندر آ جاؤ ابوالاسود، جلدی۔ ارے میں تم سے بات کر رہا ہوں، سٹیائے ہوئے پٹھے۔ میں نے کہا اندر آ جاؤ، او سٹیائے ہوئے شخص، اندر آ جاؤ۔ ابوالاسود اب یہودی نہیں، مسلم ہے، مسلم مسلم۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر۔ جہنم کی گہرائیوں میں پہنچو، خاموش ہو جاؤ۔
होश हो जाओ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी भूख के लिए तोहफा है। हमें तुम्हारी परवाह नहीं, हमारे पास हारिस और मरहम है। हमारे दरमियान फैसला अगर बराबर हो जाए, यानी हर तरफ 3 अफराद हो, तो जिस तरफ अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे उस फैसले को सही कहा जाएगा। क्या आप सब इस बात पर मुत्तफिक हैं? यहाँ पर 6 अफराद हैं और सब के सब खिलाफत के दावेदार। कौन सबसे पहले कलाम करेगा? अली। जुबैर। तलहा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तमाम झूठ का फलंदा साफ कर सकूं, जिसको रसूल से नाहक मंसूब किया जा रहा है। जैसे कि नबूवत और इमामत एक घर में नहीं रह सकते। और मैं शूरा से बहस के शुरू से इस बात का आदा करना चाहता हूँ और आप भी इस बात पर राजी होंगे। अल्लाह की कसम, क्या कोई मेरे जैसा है जिसके चचा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो असद अल्लाह हैं और रसूल के शेर हैं और तमाम शोहदा के सरदार हैं? क्या किसी के पास ये शरफ है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अल्लाह की कसम, क्या तुम में से कोई भी किसी ऐसे शख्स को जानता है जिसने ईमान लाने में मुझसे पहल की हो? नहीं, वो आपके सिवाय कोई शख्स नहीं हो सकता। जैसा कि जुबैर ने कहा, हक है। ये हमेशा से आप ही का शर्फ है अली। आप ही वो पहले शख्स है जो ईमान लाए, और ये सही है। रुक जाओ, सब्र सब्र। तुम्हारा हमारी औरतों से कोई कलाम नहीं। अय अबू राफिक, ऊँटों की मुहार संभालो। रुक जाओ, देखते हैं अली को क्या कहना है। तुम जानते हो कि मैं गरजदार शख्स हूँ, और ऐ इब्ने अब्बा, तुम भी एक गरजदार शख्स हो। हम लोगों का उस बात पर मुकम्मल ईमान है। बताओ तुम क्या चाहते हो, और बुराई और उसके शर से बचो। तुम इन हाशमी औरतों को कहाँ लिए जा रहे हो? क्या मक्के वालों के लिए शर्म की बात नहीं? मक्के वाले मोहम्मद के घर वालों की परेशानी को खूब समझ सकते हैं।
क्या समझे। तुम एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो, बगैर किसी हुज्जत के। ऊँटों का ख्याल रखो। हमने ये तरफ की तरफ जाने का कसद कर लिया है, चाहे कुछ भी हो। तुम मुझको अपने तमाम शहसवारों से ज्यादा जानते हो। जानते हो क्या कह रहे हो? हाँ, मालूम है। तुमने कहा कि तुम यसरब जा रहे हो। हाँ, जा रहा हूँ। और तुम लोग कह रहे हो कि तुम वापस मक्के नहीं जाओगे। हाँ, ये भी कहा है। तो ये फातिमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब हैं। और ये फातिमा बिन्त असद तुम्हारी माँ। और ये फातिमा बिन्त मोहम्मद। मैं और मेरे शहसवार तमाम मक्के के बहादुर और ताकतवर सिपाही हैं, और यहाँ सिर्फ तुम्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं। या तो वापस चलो या अपने सर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम लोग तैयार हो जाओ मरने के लिए। मक्के के बहादुरों, इन सबको वापस ले चलो, और मैं अली को संभालता हूँ अकेला। जो बेवकूफ भी मेरे सामने खड़ा होगा आज जिंदा वापस नहीं जाएगा, समझे? मैं इन लोगों में से नहीं जो बेरहम कातिल हैं। जाओ और मक्के के मुनाफिकीन से कहो, मैं रसूल के साथ हूं, अमन में और जंग में। अल्लाह की कसम, क्या सिवाय मेरे कोई है जिसके लिए जंगे ओहद में आसमान से निदा आई कि कोई तलवार जुल्फकार जैसी नहीं और कोई शख्स अली जैसा नहीं। मोहम्मद और उसके सिपाहियों ने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली है। मैं यहाँ मोहम्मद से जान छुड़ाने के लिए नहीं आया हूँ। हम अपने सिपा की तादाद की वजह से इनको आसानी से शिकस्त दे देंगे। कबूल के लिए वो आ गए, मक्के के फौजी आ गए हैं बड़ी तादाद में। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या चालाकी है, इन्होंने यसरब के चारों तरफ खंदक खोदी है। अपने जज्बात लड़ाई के लिए बचा रखो अबू सुफियान, अपने गुस्से को इस खंदक में डाल दो। इस तरह हम अपनी फतह का जश्न मना सकेंगे। इधर आओ, इधर आओ।
अपनी जगह मत छोड़ो, मैदान से मत भागो। या युवन्नास, मैदान से मत भागो। ऐ मोहम्मद, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मर्द नहीं? मेरे अंदर तुम सबसे ज्यादा फरासत, बहादुरी और ईमान है। ऐ मोहम्मद, तुमने हमसे कहा है कि तुम मदीने की औरतें लाए हो, क्या तुम में से कोई मर्द नहीं है? ऐ मोहम्मद, तुम्हारी जन्नत और दोज़ख का क्या नतीजा है? इनके तमाम अकाइद झूठ का पलंदा है। मैं तो यही कहूंगा कि मदीने में कोई मर्द नहीं। तुम लोगों के दरमियान कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? क्या तुम्हारे दरमियान कोई है जो इस काफिर के मुकाबले पे जाए? तुम लोगों के दरमियान कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? रसूल अल्लाह तुमसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दो। अली, रब्बे-जुल-जलाल, तुमने बदर में उबैदा और उहद में हमजा लिया और आज खंदक के दिन अली जो दामाद रसूल। ऐ अल्लाह, इनको अपने मुकाबल पे कामयाबी अता कर, एक अजीम फतह। अल्लाहु अकबर। انظر سوف نبيدهم ليس فيهم رجل واحد. يا عمرو، يبدو أن فيهم رجلا واحدا. अल्लाह की कसम, मुझको बताओ कि सिवाय मेरे कोई है कि खंदक के रोज जब अम्र इब्ने अब्दवुद को मर्द की तलाश थी तो उसके मुकाबिल मेरे अलावा कौन आया था? और जब सबकी आंखें डर के मारे उनके सरों से बाहर आ रही थी, जबकि अम्र हमारे सामने आ खड़ा हुआ और जब रसूल ने आवाज दी कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है, मुझे बताओ तो सही। और फिर ये कहा कि खंदक के दिन अली की जरबत तमाम इबादत सखलैन से अफजल है। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही है। आप सही कहते हैं। तुम लोग गवाह रहो, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है। अली इब्ने अबी तालिब। या अल्लाह, आज मैदान में वो शख्स जा रहा है जो नाम में और पैगाम में तुझसे निस्बत रखता है। ये वो है जो सारा साल तेरी राह में जहाद करता है और उसके दिल में तेरी रजा के अलावा कुछ और नहीं।
या अल्लाह इस पर रहम फरमा और इसकी नुसरत फरमा और इसके हाथों को कुव्वत अता फरमा। हम यहाँ किसी का खून बहाना नहीं चाहते। अगर अबू सुफियान तुम्हारे साथ था, वो अगर होता भी तो खंदक में उतरने की हिम्मत नहीं करता। तुम मुझको जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ और मुझको पूरा यकीन है कि तुम खंदक की जरूरत को भुला न पाओगे। तो फिर मुझको दिखाओ कि तुम किस कदर बहादुर हो। देखने वालों को बताओ कि बहादुरी की बुनियाद क्या है। अबू सुफियान, उस लड़के ने मुझको 3 में से एक बात का इंतखाब करने के लिए कहा। या तो मैं तुमको लश्कर की क़यादत करने के लिए अकेला छोड़ दूं, या फिर मैं इसकी तरफ जाऊं और इससे लड़ूं। इसलिए तुम अपनी जगह रहो और देखो। तो देखो इस खतरनाक आदमी को, जिसको अगर शेर भी देखे तो वो डर जाए। तुमने खूबसूरती से मेरा जवाब दिया, मगर अब घोड़े से उतर आओ और मेरा मुकाबला करो। मैंने तुम्हारे पांव इसलिए काटे ताकि तुम कटी हुई टांगों का दर्द महसूस करो। किधर जा रहे हो? मुझको इस अजाब से छुटकारा दिलाओ या अली। तुम्हारी तलवार की काट का बदल से ही मालूम हो गया, पूरे आलम अरब में कोई और आदमी तुम्हारे जैसा नहीं, और सिवाय तुम्हारे कोई नहीं। यह हरकत मैंने इसलिए की कि तुम गुस्से में आओ और मेरी जिंदगी का खात्मा कर दो, ताकि तुम भी मुझसे जल्द फारिग हो जाओ और मैं भी तमाम कबाइल की लानत और बेइज्जती से। हम अहले बैत नबी हैं, हम कुछ नहीं करते सिवाय उसके कि जिसमें अल्लाह की मर्जी और हुक्म होता है। तुम्हारी हरकत ने जरूर मेरे अंदर के जज्बात भड़का दिए, मगर मैंने अपने जज्बात ठंडे किए ताकि तुम्हारा सर कलम कर सकूं। मैंने अपने इंतकाम पे अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखा। मैंने इधर उधर चहलकदमी की ताकि मेरे जज्बात ठंडे हो जाएं, और फिर अल्लाह से तौबा की, और अब वो करूंगा जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। तुम लोग किधर भाग रहे हो? भगोड़ो, बुज़दिलों,
खंदक के दिन अली की ज़रबत तमाम इंसानों और जिनों की सारी इबादतों से अफजल है। علي علي ओ अबू तालिब के बेटे, गौर से सुनो। तुमने अपने खिलाफ बुग़्ज़ और अनात को बढ़ावा दे दिया है। तुम मेरी तलवार का मजा चखो। अली, इधर देखो, मैं हूं तुम्हारा दुश्मन। अबू सुफियान आपके खिलाफ क्यों बातें कर रहा है? उसको ये जुमले तो रसूल अल्लाह के खिलाफ कहने चाहिए थे। अगर अबू सुफियान को लड़ने में दिलचस्पी नहीं तो फिर यकीनन इसके सीने में काला दिल धड़कता है। शैतान की तरह ये मुझको और मेरे चाहने और मानने वालों को देखता रहेगा और तंग करता रहेगा जब तक जिंदगी है। अल्लाह की कसम, क्या कोई मर्द है सिवाय मेरे जिसके लिए रसूल ने फरमाया कि ऐ अली, तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के, और तुमसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय काफिर के। यानी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो बातें नहीं। ये हक है, हक है, हक है, हक है। अली, ये हदीस सिर्फ आप ही का हक है। या अली, ये आप ही का शर्फ है। अबुल अस्वद अब यहूदी नहीं, मुस्लिम है। मुस्लिम, मुस्लिम। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر। जहन्नुम की गहराइयों में पहुंचो, खामोश हो जाओ। मोहम्मद, अक्लमंद बनो, वापस चले जाओ। ये खैबर है, ये खंदक नहीं, ये ओहद नहीं, ये बद्र नहीं, ये खैबर है। मोहम्मद, वापस चले जाओ। क्या तुम सुन रहे हो मोहम्मद? अपने आप को बचाओ और वापस चले जाओ। मोहम्मद, इधर देखो, मैं हूँ हारिस। मोहम्मद, मैं तुमसे कहूंगा कि तुम फौरन वापस चले जाओ, वरना मैं तुम पर ऐसे वार करूंगा कि तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। मोहम्मद, मोहम्मद, इधर देखो, मैं हूँ हारिस। क्या मोहम्मद,
तुम्हारे दरमियान कोई मर्द है जो मुझसे लड़ सके मेरे सामने आके? अल्लाह की कसम, खैबर की जंग की बात करो। जब तुम सब के सब नाकाम वापस भाग आए तो रसूल ने फरमाया कि कल मैं उसको अलम दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, और अल्लाह और रसूल उससे, वो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, और अल्लाह उसके हाथों से खैबर के किले को फतह करवाएगा। ये सही है या अली, ऐसा आपके लिए ही कहा गया है। शाबाश सिपाहियों, क्या तुम मोहम्मद से डर गए हो? खौफजदा तो नहीं हो? देखो वो वहां पे क्या कर रहा है। वो फौज और अलम के साथ वहां खड़ा है, देखो। फिक्र मत करो, ये किला तमाम दूसरे किलों से जुदा और महफूज है। हम उनसे ज्यादा बहादुर और अक्सरियत में, इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। मगर वो पिछले 5 किले फतह कर चुके हैं। इनके बस में इससे ज्यादा ताकत नहीं है। हम तादाद में 8 गुना ज्यादा हैं और कसरत से तीर और तलवार मौजूद हैं, और साथ साथ ईमान भी। और अभी तक तो अरब की तलवार भी बाहर नहीं निकली। मुझे बताओ, कोई आया मुझसे या अरब से लड़ने के लिए? मर्द या हारिस, तुमने पहले बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है और बहुत से सिपाहियों को तहत किया है, मगर आज तमाम यहूदियों की आंखें तुम पर लगी हैं। अली कहाँ है? मुझको यहाँ अली नजर नहीं आते। अली फौज के साथ नहीं हैं, उनको आशोब चशम है। वो फौज के लिए रोटियां बना रहे हैं। क्या कोई है जो आपकी जगह रोटियां बना सके? रसूल ने आपको बुलाया है। إن قلعة الخيبريين المتعالية تنادي باسمك. मोहम्मद ने लड़ने के लिए अली को बुलाया। हाँ, अली। علي ابن أبي طالب. علي بن أبي طالب. अल्लाह की कसम, क्या खैबर में रसूल ने उस सुबह मुझको नहीं बुलाया था? मैं वहां आया जबकि मैं शदीद आशूब चशम में था। मेरे भाई अली, खैबर का किला अभी तक फतह नहीं हुआ है। तुम जिसको चाहो अपने साथ ले जाओ और किले के दरवाजे खोल दो। हमारी दुआएं फतह के लिए तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह, ये हाथ तेरी फतह के लिए दुआ गो है, ताकि तू इनको किसी भी तरह अपनी रहमत और नेमत से दूर मत करना।
या हारिस, क्या तुमने लड़ने के लिए नहीं बुलाया था? देखो मैं आ गया, अली इब्ने अबी तालिब, मोहम्मद रसूल अल्लाह का भाई। गौर से सुनो अबू तालिब के बेटे, मेरी माँ ने मेरा दूसरा नाम भी रखा था। मैं खुद मौत हूँ। मैं दुनिया और आसमान के दरमियान बराबरी करने वाली रस्सी हूँ। कौन है जो मेरी तलवार और नेज़े के सामने खड़ा हो? मैंने तुम्हारी खिताबत सुन ली है। क्या कोई और रास्ता है जिससे तुम लड़ाई से बच जाओ? हम तुमसे ज्यादा करीब हैं बनिस्बत मक्के वालों के, जो तुमसे जलते हैं, क्योंकि हम एक ही अंबिया के सिलसिले को मानने वाले हैं। या हारिस, हमारा वही दीन है जिसको हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने बताया, और असली यहूदी नस्ल दर नस्ल उसके आखिरी पैगंबर का इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। गौर से सुनो अबू तालिब के बेटे, मैं तुम लोगों से एक मिट्टी के जर्रे की जितनी भी निस्बत रखना पसंद नहीं करता। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो मेरी तलवार और नेज़े की मार बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। सब्र करो, ठंडे हो जाओ। हम लोग पड़ोसी हैं, इसलिए हमारे खिलाफ लड़ने में जल्दी मत करो। मुझसे लड़ो, अपनी तलवार बाहर निकालो। मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो तालिब के बेटे, मुझसे लड़ो। ومصيبتاه يا حارس، عودوا إلى داخل القلعة أسرعوا. إلى أين تهربون؟ ابقوا في أماكنكم، لا تهربوا، ابقوا. عودوا وأحضروا الحارب إلى هنا، حارب إلى هنا. इसके बाद रसूल ने अपने हाथ मेरी आंखों पे फेरे और आशूब चश्म रफा हो गया। उन्होंने मुझको अलम दिया और मैं जंग करने चला गया। फिर वहां मैं मरहब व हारिस से लड़ा और कत्ल किया और किले के दरवाजे को जड़ से उखाड़ा खुद अपने हाथों से, और मुसलमानों को रास्ता मिल गया। ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं।
کی فوج پھر بھاگ گئی. ابا اسحاق کی خبر اور شکل ایک جیسی لگ رہی ہے. وہ سب کے سب ڈر گئے, سب بھاگ گئے. خاموش بڈھے. یا سیدی حارث, میدان میں گر گیا. گر گیا. حارث گر گیا. وہ گر گیا. وہ گر گیا. وہ گر گیا. وہ گر گیا. تم نے کہا کہ وہ میدان میں گر گیا اور مر گیا. کس نے مارا؟ علي 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 بن أبي طالب. علی. یہ تو پہلے ہی وار میں مارا گیا. جاؤ میرا سامان حرب لاؤ. مجھ کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری ماں کی طرح اس کو اس غم کے موقع پر یہاں ہونا چاہیے تھا. مرحب خیبر والوں کی آس ہے. مجھ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بڑا بہادر اور جنگجو ہے, اس لیے میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے سچے پیغام کو سنیں. میں اس کی تمام نسل کو اس زمین سے ختم کر دوں گا. میں اس کی تمام نسل کو اس زمین سے ختم کر دوں گا. میرے بھائی حارث خیبری کو مارا. میں نے اس کو سلامتی کی پیشکش کی تھی. میں نے اس کو کہا کہ اسلام قبول کرو اور ہمارے ہو جاؤ. یہی میں تم سے کہوں گا. مجھے اسلام قبول کر لوں؟ میں مسلمانوں کا خون پیتا ہوں. باتیں چھوڑو یا علی. تمام مذاہب جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ جامع اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں, جو شروع ہوئے آدم, نوح, موسیٰ اور عیسیٰ سے اور ختم ہوئے محمد پر. باتیں چھوڑو یا علی اور مجھ سے لڑو. جیسا ایک بہادر لڑتا ہے
तमाम खैबर जानता है कि मेरा नाम बरब है, जिसको लोहे से मोहब्बत है और तमाम लड़ने वालों का सरदार है, और जिसकी तमाम फतुहात की लंबी फहरिस्त है। अपनी तलवार उठाओ और देखो किस तरह मैं तुमको अपने वार की गिरफ्त में लेता हूं। अपने खून के इतने ही प्यासे हो, मगर फिर भी हमारे दरमियान कुछ चीजें हैं जो मुत्तफिका हैं। तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हारे नबी मूसा हमारे नबी भी हैं। ये मत कहो, मूसा का दीन तुम्हारे से अलग है। तमाम रास्ते एक ही नबी पर खत्म होते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा। तो जान लो, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अल्लाह की कसम, मुझे बताओ तो सही, क्या तुम में से किसी का भाई जाफर तैयार है, जिनको अल्लाह ने जन्नत में 2 पर अता किए हैं अपने बाजुओं के बदले? या मोहम्मद, तुमने हमको कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर जान लो कि हम बहुत मुतमईन हैं, और तुमने हमको यहाँ पर मुकम्मल मजहबी आजादी दी है इस मस्जिद में, ताकि हम भी अल्लाह की इबादत कर सकें। और पिछले कुछ दिनों से तुम लोग हमसे बेहतरीन तरीके से पेश आए हो, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। एक 70 साल बूढ़ा शख्स जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहा है। हमारा ताल्लुक बनी नजरान से है। हम लोग अपने मजहब की सच्चाई पे ईमान रखते हुए रहते हैं, और हम ये मजहब अपने आबा व अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं। हम दोनों ने तुमसे तुम्हारा कलाम गौर से सुना है। तुमने कहा कि अगर ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं, तो फिर खुदा का बेटा कहलाने के ज्यादा हकदार तो आदम है, जिनका ना कोई बाप है ना माँ। और हम लोग सिर्फ इसलिए ईसाई हैं क्योंकि हम अपने आबा व अजदाद की वजह से ऐसे हैं। मगर या मोहम्मद, हम तुम पर ईमान नहीं ला सकते, और ये भी नहीं मानते कि तुम अल्लाह के रसूल हो। या मोहम्मद, मुझको और तमाम नजरानियों को हमारी राह पे चलने के लिए अकेला छोड़ दो, और अपने तमाम नजरियात और मजहब को रहने दो। हमको हमारे अकीदे और नजरिए पर खुशी से जीने के लिए। जब हम अपने नजरियात का मुताला करते हैं तो हमको अपना मजहब सच्चा मालूम होता है। इत्मीनान रखो, आराम से सब्र करो। मैंने जो भी कहा वो मेरे नहीं, अल्लाह के अल्फाज हैं। तुम लोगों ने अपने सवाल का जवाब मुझसे सुन लिया, मगर हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तमाम घमंड के जो तुम लोग रखते हो, मगर जिसको तुम सच समझते हो वो सच सिर्फ तुम्हारे लिए है। इन सब बातों के बाद मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम लोग अब मुबाहिला करो। मुबाहिला? तुम लोग आपस में मशवरा कर लो और मुबाहिले के लिए राजी हो जाओ। मुबाहिला?
یا محمد ہمیں تمہاری پیشکش منظور ہے اور ہم کو اپنے دین کی سچائی پر اعتماد ہے۔ تمہاری یہ پیشکش تمہاری پچھلی باتوں سے مخالف ہے کہ تم ہم سے بات کر کے ہم کو اسلام پر قائل کرو گے۔ مباہلہ کب کرنا ہے؟ مباہلہ کہاں کرنا ہے؟ جیسا کہ تم لوگ مباہلے کے لیے راضی ہو تو پھر کل صبح مدینے کے باہر۔ ہم کو اپنے تین خداؤں پر پورا یقین ہے، اور وہ تمہاری نسل کو جلا دیں گے اور تم کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، اور تمہارے تمام حامی ہمارے نظریے کے مطابق سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اگر تم لوگ محمد سے محبت کرتے ہو تو آج ان کو آخری سلام کر لو، کیونکہ کل کے بعد وہ پھر سے طلوع آفتاب نہیں دیکھ سکیں گے۔ اپنے رسول کو آخری سلام کر لو۔ آج جب میں 70 سال کا ہوں اور ان تمام سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو کل کے دن میں اپنی تمام 70 سالوں کی عبادت کا واسطہ دے کر بد دعا کروں گا تاکہ میں تمہارے رسول پہ عذاب اور تباہی نازل کرواؤں۔ آرام سے اطمینان رکھو، اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ میں نے ان دونوں کو سلامتی اور امان دی ہوئی ہے، ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی بات پوری کر سکیں۔ اگر تم لوگ محمد سے محبت کرتے ہو تو آج ان کو آخری سلام کر لو، کیونکہ کل کے بعد وہ پھر سے طلوع آفتاب نہیں دیکھ سکیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے اے انصاری؟ میرا نام ابو رافع ہے، محمد کا ایک ادنا سا غلام۔ اگر میں تم سے سوال کروں تو کیا جواب دو گے؟ تم سوال کرو، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر محمد یہاں آئے تو وہ کس طرف سے آئیں گے؟ وہ وہاں جو تم درخت دیکھ رہے ہو اس طرف سے، جہاں سے سب آئے ہیں۔ یا ابو رافع، مجھ کو یہ بتاؤ، یہ محمد کس کس کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں؟ وہ جو سیدھے ہاتھ پہ ہیں وہ علی ہیں، علی ابن ابی طالب، ان کے بھائی اور مسیح۔ علی؟ خیبر والا علی؟ علی جس نے عمرو بن اپنے بت کو قتل کیا؟ اور حارث اور مرہب کو خیبر میں؟ اللہ کی قسم، کیا تم میں سے کوئی ہے جس کو رسول کی اکلوتی بیٹی کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے، جو رسول کا سب سے قیمتی اثاثہ اور بقول رسول کے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے؟ بے شک یہ شرف آپ کے سوا کسی اور کا نہیں، قسم ہے اللہ کی قسم۔ مجھے بتاؤ کہ میرے سوا کوئی اور ہے جس کے دو بیٹوں کو رسول نے اپنے بیٹے کہا، حسن اور حسین، جو رسول کی روح ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟
शक सिवाय आपके कोई नहीं। वो कौन खातून है? वो रसूल की इकलौती बेटी हैं। अली की ज़ौजा। वही ज़ौजतु अली। फातिमा है सैयदतुन निसाइल आलमीन। मैं इनका इत्मीनान महसूस कर सकता हूँ। हमारा हिसाब बिल्कुल गलत है। देखो, वो मोबाइल में अपने घर वालों को लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ हम पर अजाब डलवाने के लिए अपने घर वालों को लेकर आए हैं। सच, अगर वो झूठे होते तो अपने घर वालों को कभी भी आगे ना करते, बल्कि इसके बजाय वो फौज लेकर आते। देखो, उन्होंने जो नन्हे हाथ उठवाए हैं, अगर वो दुआ कर दें तो आसमान और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दें। अगर उन्होंने लानत कर दी तो जमीन पर एक भी ईसाई नहीं बचेगा। इनको रोको, इनको रोको, जल्दी जाओ वहाँ, इनको रोको, इनको बद्दुआ देने से रोको। अल्लाह की कसम, मुझे बताओ कि किसके लिए आयत तत्हीर नाजिल हुई है। अल्लाह की कसम, क्या रसूल ने नहीं फरमाया कि सब मस्जिद में खुलने वाले दरवाजे बंद कर लो सिवाय अली के दरवाजे के, क्योंकि अल्लाह इस दरवाजे को खुला रखना चाहता है, मगर तुम सब इस बात पर राजी ना हुए। उस दिन रसूल ने कहा कि ना मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे दरवाजे बंद किए, ना अली का दरवाजा खुलवाया, सिवाय अल्लाह के जिसने सबके दरवाजे बंद करवा कर अली का दरवाजा खुलवाया। अल्लाह की कसम, क्या सिवाय मेरे कोई है जिसके लिए रसूल ने गदीर के दिन फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला है। ऐ अल्लाह, मोहब्बत रख उससे जो मोहब्बत रखे अली से, और दुश्मनी रख उससे जो इससे दुश्मनी रखे, और इसकी नुसरत कर और कामयाबी अता कर जो इसकी मदद करे, और तबाह कर दे उसको जो इससे जंग करे। आपका कलाम बिल्कुल सही है, हक है, ये सब हक है। अब से कुछ देर बाद रसूल अल्लाह आप लोगों से खिताब फरमाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी जगह पे मौजूद रहें। रसूल ने कुछ अहम ऐलानात करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ लोगों, मेरे बाद मवद्दत रखना।
میں تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت۔ جو ان دونوں سے منہ موڑے گا وہ ہلاک ہوگا۔ حق قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حق کے ساتھ ہے۔ اللہ مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللهم والي من والى عليا وعادي كل من عاد عليا۔ اے لوگوں، ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ الله أكبر، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي۔ اللہ کی قسم، کیا تم نے رسول اللہ سے بار بار نہیں سنا؟ اے علی، آپ مجھ سے ہیں، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمارے دلوں میں رتی برابر شک نہیں آپ کے کلام میں۔ میں نے جو تم لوگوں سے کلام کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور ان تمام باتوں کے راوی اور گواہ ہزاروں میں ہیں، بجائے ایک کے۔ تم لوگ اس راستے پہ چل رہے ہو جس پر تم لوگوں نے چلنا چاہا۔ اور میں اس راستے پہ چلتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ اور رسول کی مرضی ہے۔ میں صابر ہوں اور صبر کروں گا۔ کس جگہ کی چھان بین کر لی ہے تم نے رکنے سے پہلے؟ کیا رکنے کا حکم میں نے دیا تھا ابن عباس؟
حکم دیا ہے؟ یہ جگہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ہم لوگوں کو ظہر سے پہلے یہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ چاروں طرف معاویہ کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں. کچھ خطرات ضرور ہیں، مگر سب کے بارے میں تیاری ہے. یہاں پر 1000 سپاہی آنے والے ہیں ہماری نصرت کے لیے. ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں. 1000 سپاہی؟ ہاں 1000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. تم اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو؟ کیا تم نے امام کا کلام سنا؟ انہوں نے کہا کہ تمام اپنی جگہ نہ چھوڑے. میں بہت پریشان ہوں مالک. کیا تم کو اس پہ کوئی شک ہے؟ کیا تم نے ان الفاظ کے بارے میں شک دل میں لا رہے ہو؟ میں نے سنا کہ تقریباً 1000 کے قریب سپاہی ہماری طرف آ رہے ہیں. تو کس بات سے تم پریشان ہو؟ تم جو سپاہ اور قبائل دیکھ رہے ہو وہ سب کے سب امیر المومنین کی نصرت کرنے والے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ معاویہ کے ساتھ ہیں؟ میں تو ان 1000 سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں. تم نے کبھی بھی میرے جیسا انسان نہیں دیکھا ہوگا جو امیر المومنین کے الفاظ کو پرکھتا ہو. میں تم سے متفق ہوں مالک. تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں نہیں جانتے؟ پریشان مت ہو. فرض کرو اگر وہ 1000 سے کم آتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا. کیا تم نے نہیں سنا؟ 1000 فوجی، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم. کیا ہوگا اگر زیادہ آ گئے اور کم آئے؟ کیا مالک تم نہیں سمجھتے کہ ایک بہترین موقع ہوگا کوفے کے منافقین کے لیے؟ ہمارا بھائی چارہ اپنے اندر سب کچھ جذب کر لے گا. علی نے 1000 کا وعدہ کیا ہے اور 900 آئے. یا پھر 1001؟ تم مجھے بتاؤ تم نے کتنے گنے؟ 800 پورے. میں نے بھی گنے اور 800 ہی نکلے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بقیہ 200 بھی جلد آ جائیں. نہ کم نہ زیادہ. یہ وہ بقیہ سپاہی ہیں جن کا ہم دونوں کو انتظار تھا. ہم کو 200 کی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ.
तुम ने कितने लोग गिने? 199। 199? मैंने अभी 199 गिने। 199? अगर दूसरे कबीलों के लोग भी फौजी गिन रहे हो तो क्या होगा मालिक? हो सकता है कि गिनने में कोई गलती हो गई हो। हाँ, ये हो सकता है, मगर हम दोनों गलत हो ये नहीं। बेहतर है अपने आप को बेवकूफ मत बनाए। अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने 1000 का कहा है और हमने 999 गिने। मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं कि एक हल्की सी भूल चूक से हिल जाए। ये इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे मौजज़े देखे हैं जो हम दो मिलकर भी नहीं देख सकते कयामत तक। हो सकता है कि गिनने में कोई गलती हो गई हो। हाँ, ये हो सकता है, मगर हम दोनों गलत हो ये नहीं। बेहतर है अपने आप को बेवकूफ मत बनाए। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा कि मैंने आपकी बात में शक का इजहार किया। तुमने कहा था कि मेरे अल्फाज सही नहीं होंगे। मुनाफिकीन हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। मुझे डर था कि वो हमें आपस में लड़वा दें और चारों तरफ से घेर लें। उधर देखो इब्ने अब्बास, मैं उस मुहिब साले का जो दूर से मेरी नुसरत को आ रहा है इंतजार कर रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी गिनती पूरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम या मौला। वालेकुम अस्सलाम मेरे झुके हुए मुसाफिर। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आपके साथ फौज में शरीक हूँगा और मेरी आंखों की खूबसूरती बढ़ गई जैसे मैंने आपके महताब चेहरे को देखा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मुझे भी तुमको देखने की चाह थी ऐ अजीज अवैस। उवैस करनी? तुमने सुना मालिक, कि अवैसे करनी है। يا إلهي هذا الرجل هو أويس القرني. أويس القرني. या अल्लाह, मैंने कितनी दुआएं की थी कि मुझको ये दिन देखना नसीब हो। तुमने इतना फासला तय किया है। इस खुशी को पाने के लिए हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे ताकि तुम अपनी ताकत बहाल कर लो। मेरी ताकत आपके लिए है मेरे मौला, मगर इससे आपकी क्या मुराद है? तमाम रास्ते में अल्लाह से दुआ करता रहा कि मुझे मौत देने से पहले एक दफा मुझे मौला की ज़ियारत करा दे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या ये आपको देखने से भी बड़ी खुशी है या मौला? हाँ। ओ मेरे अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरा साथ दोगे और मेरी फौज के साथ यहाँ से सिफ़ीन के मैदान तक जाओगे। वहां तुम जंग में शहादत पाओगे। ऐ लोगों, गवाह रहो कि रोज़े गदीर रसूल ने अली को अपना जानशीन और वसी करार दिया। मन कुंत मौला फहाज़ा अलीउल मौला, और कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तुम लोग इसकी इताअत करो, इससे मोहब्बत करो। मन कुंत मौला फहाज़ा अलीउल मौला।
जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। हमको पानी की शदीद तलब है। तुमको खाना पानी कहां से मिलता है? मेरा एक दोस्त जो फुरात किनारे रहता है, हर महीने मुझको हस्ब जरूरत खाना और पानी फराहम कर देता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो दरियाए फरात का रुख करो। रुक जाओ, मैं गुजारिश करता हूँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऐ मर्देहा, मुझको ये बताओ कि इनका क्या नाम है? वो कोई नबी है या वसी नबी? वसी रसूलुल्लाह। उसका नाम क्या है? अली। अली? इलियास? एलिया? अली इब्रानी में एलिया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जंग करने। जंग मगर किसके खिलाफ? शामी फौज के खिलाफ। शामी फौज का हाकिम कौन है? माविया।
معاویہ کیا آپ وصی رسول ہیں؟ ہاں نصرانی، میں ہی ہوں وصی پیغمبر آخر۔ میرے آبا و اجداد نے اس دن کے لیے بہت انتظار کیا ہے کہ آپ آئے اور اس چھپے ہوئے کنویں کو ظاہر کرو۔ سب کے سب مر گئے، صرف کنویں کو راز جانتے ہوئے۔ وہ سب کے سب مر گئے، صرف کنویں کو راز جانتے ہوئے۔ مگر آپ کو میں نے پا لیا۔ اس تختی کو پڑھیے جس پر حواری عیسیٰ نے خود لکھا ہے کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کو یہاں رکھا گیا ہے، اور کوئی نہیں جاننے والا ہوگا اس جگہ کا سوائے آخری نبی کے یا اس کے وصی برحق کے۔ ان دونوں پہ ایمان لے آنا اور بغیر کسی حجت کے ان کے ساتھ ہو جانا، یہ حکم تھا مجھے۔ یا علی، مجھ کو مسلمان کر دیجئے۔ میں تمہارے چہرے پہ ایمان کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ مجھ کو اپنی تختی دکھاؤ۔ اس خدا کا شکر ہے اور ہم کہ جس نے ابو طالب کے بیٹے علی کو نعمت عطا کی۔ یا علی، مجھ کو مسلمان کر دیجئے۔ تمہارے مسلمان ہونے کے لیے الفاظ سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں سچ کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی فوج کے ساتھ ہوں گا۔ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی فوج کے ساتھ ہوں گا۔ میں تم کو اسلام میں آنے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ کیا میں تم کو ایک خوشخبری دوں؟ آپ کہیے میری آنکھوں کے سکون و چین۔ تم صفین میں جا رہے ہو اور تم وہاں اولین شہداء میں سے ہوگے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور میرے دل کی آواز۔ اور تمہاری شہادت کے بعد تمہاری نماز میں پڑھاؤں گا۔ اور تمہاری طرف اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ شخص ہم میں سے ہے۔